So, hello everyone, a very good morning. My name is Chavi Prada and I'm a faculty member at Sahitya classes for UGC NET Paper 1. I'm here today to share a very practical and result oriented strategy for these 1.5 months left for the UGC NET Paper 1 for those who want to crack this exam at any cost. So before I start, let me share some details about myself and my own journey so you know that everything I say comes from a real experience. I have recently qualified my UGC NET exam with 99.73 percentile and I secured 41 correct answers out of 50 questions in paper 1. So, with this experience, I want to share all the strategy which helped me in my journey and which can help you in yours as well. 41. So, my friends, this is the score I want you all to touch or even surpass. So, do you think it is easy? Some people say that paper 1 is quite easy. What do you think? Is it easy? Honestly, it is. But it is not that easy. It is a bit demanding. यूजुअली ऐसा होता है कि आप पेपर 1 को बहुत इजी मान के साइडलाइन कर देते हो और सारा एम्फेसिस होता है आपका पेपर 2 पे. फॉर दैट रीज़न हमेशा ये होता है कि आपका जो स्कोर है वो 25 टू 30 क्वेश्चंस के बीच में रहता है. वो एक थ्रेशोल्ड बन जाता है, उससे आगे नहीं जा पाता है. उसको आगे ले जाने के लिए यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड वो आगे लेके जाना इज़ द गेम चेंजिंग पॉइंट. Paper 1 is very very important because from my experience I've learned this कि paper 1 is not just a qualifying paper, it's a rank deciding paper. It decides your rank, it decides your result, it instantly pushes your percentile up. So for that reason you have to put some extra efforts. 35 के प्लस आपको जाना ही पड़ेगा if you want to clear this exam. 35 to 40, it's a safe score, but more than 40 question, it is the safest zone. यहाँ पे आपका JRF level comfortably पहुँच जाता है. If you want to crack your JRF this time, you have to aim at 40 plus questions at any cost. So, for that reason, we'll discuss all the important topics, the strategy we require to crack this exam in 1.5 months. Do you think 1.5 months is sufficient to crack this exam? Yes, it is. You know why? Because 1.5 months isn't for perfection, it's for smart coverage. And smart coverage is not about how much you cover, the topics that are in paper 1, but more about how many topics that actually comes in the exam you cover. So today we'll discuss all the hot topics जो हर साल repeatedly आते हैं और उनसे आपका स्कोर बनता है. हमको ये नहीं देखना कि हम कितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं, हमें ये लेके चलना है कि हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करें जिनसे आपका एक अच्छा स्कोर बिल्डअप हो सकता है. इन एवरी यूनिट देयर आर सम टॉपिक्स, सम हॉट टॉपिक्स जो आप कवर करोगे. I am assuming you all are already aware about the structure of paper 1. There are 50 questions, 2 marks each, so constituting overall 100 marks out of 300. So paper 1 आपका एक पूरा मिक्सचर है बहुत सारी units का. There are 10 units. I think you all are already aware of it. Research, teaching, then your environment, your communication, ICT, mathematical aptitude, your data interpretation, reading comprehension, and your higher education system. All these 10 units together form this paper. So it seems a bit vast and diverse. उसकी वजह से आपको डर लगता है कि ये कैसे कवर होगा. एंड ऑल्सो क्योंकि आप पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो आप
मोस्टली पेपर 1 अवॉइड कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, ये आपको नहीं करना है। पेपर 2 पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस पेपर 2 आपका ज़्यादा वेटेज लेके चलता है, 200 मार्क्स। लेकिन अगेन पेपर 1 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर 1 इज़ बिट प्रिडिक्टेबल। पेपर 2 से ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है आपका पेपर 1। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपना पेपर इंग्लिश लिटरेचर से दे रहे होंगे, इंग्लिश लिटरेचर से अपीयर हो रहे होंगे, या फिर वो पहले भी दे चुके होंगे। तो इफ़ यू रिमेंबर इन जून 2025 इंग्लिश का पेपर, इट केम एक्सेप्शनली अनप्रिडिक्टेबल, राइट? सब एकदम सडनली बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया था। फॉर दैट रीज़न यू नीड पेपर 1। आपने बहुत लोगों से उस टाइम सुना होगा, या फिर आपने खुद ऐसा महसूस भी किया होगा कि पेपर 1 अच्छे से करके जाते तो हमारा नेट क्लियर हो जाता या हमारा JRF क्लियर हो जाता। इसीलिए हमको पेपर 1 अच्छे से करके जाना है, बिकॉज वी नेवर नो पेपर 2 कैसा आए। इसलिए अगर आपका पेपर 1 अच्छा होगा तो नेचुरली आपका पेपर 2 का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। So let's get started. Just remember, we have to be consistent and we have to cover it smartly. हमको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है, हमको वो कवर करना है जो एग्ज़ाम में आता है, जो पिछले 5 साल से रिपीटेडली आ रहा है। क्योंकि 1.5 मंथ्स में आप इतना ही कर सकते हो, एंड इससे ही आपका बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। There are 10 units. We'll decode each unit, all the topics. We'll go through the doable depth of each unit. So, सबसे पहले है आपका teaching aptitude. See, teaching aptitude is the most scoring unit. Why? Because there are so many questions जो बहुत ज़्यादा आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। तो आपको ये लगता है कि it's easy. So it is easy. There are some units like teaching aptitude, then your research aptitude, ICT, and your mathematical aptitude, then DI, then your reading comprehension, logical reasoning. These units, I guess 7 units, ये सब जो हैं ये बहुत ज़्यादा easy scoring units हैं, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं और वही आएंगे। एक पूरा पैराडिम, एक पैटर्न जो है उसको आप पहले से प्रेडिक्ट करके चल सकते हो। लेकिन देर आर सम यूनिट्स लाइक हायर एजुकेशन एंड योर एनवायरनमेंट, PD, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा लर्न भी करना पड़ेगा। ऑल्सो ये थोड़ा सा आपका अनप्रिडिक्टेबल पार्ट भी हो जाता है। कभी कभी आपके कम्युनिकेशन से भी बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए हमको फोकस करना है वो पार्ट जो आपका बहुत स्टैटिक पार्ट है, जो हमेशा आता है। सबसे पहले हमें उन पे फोकस करना है। सो टीचिंग इज़ वन ऑफ देम। आपको टीचिंग के वो टॉपिक्स ज़रूर करने हैं जो रिपीटेडली आते हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द हॉट टॉपिक्स। सो व्हाट आर दीज? सबसे पहले है आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इट्स ए न्यू टॉपिक। इस पे अभी लेटली बहुत क्वेश्चंस देखे गए हैं। या पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इन जून 2025 इस पे क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उससे पहले काफ़ी क्वेश्चंस इस पे रहे हैं, एंड फॉर दैट ऑब्वियस रीज़न यू कैन नॉट अवॉइड दिस टॉपिक। देन आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में जो बनते हैं वो बनते हैं टीचिंग मेथड से एंड टीचिंग टूल से। So you have to be very, very, very well prepared with methods and tools. There are some methods like lecture method, discussion method, demonstration method. I think you all are already aware about them. लेकिन still if you're not, इसके आगे भी we'll make some videos जिसमें मैं आपको कुछ important concepts और कुछ important topics वो cover कराऊंगी। Then there's situated cognition. इस पे भी आपके बहुत questions देखे जा रहे हैं। Inclusive learning, this is again a new topic.
देन आपका एमओसीज एंड स्वायाम, आई थिंक ये आप जानते ही होंगे ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ये लिटरली आपके हर एग्ज़ाम में इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देयर आर सम चैनल्स, स्वयं प्रभा एंड ऑल, यू हैव टू गो थ्रू एवरी चैनल, वहाँ पे चैनल्स में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी एमओसी से आ रहे हैं। तो ये टॉपिक है जो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है, ये आपको करके ही जाने हैं अगर आपको सेफ जोन में रहना है। इसके अलावा भी देयर आर सम टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका जो बेसिक्स है, यू नो, द मीनिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ये सबसे बेसिक है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में। ये आपको पता होना चाहिए। एंड इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको लगते हैं कि वो बहुत इजी हैं, लेकिन वो थोड़े से ट्रिकी होके पूछते हैं। तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इन सारे बेसिक्स को लेके। देन योर लेवल ऑफ टीचिंग से आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। आपने बहुत क्वेश्चंस देखे भी होंगे अगर आपने PYQs किए होंगे। देन comes your pedagogy and andragogy and hudagogy as well। ये भी आप एक बार देख के चलें ये क्या है, ठीक है। the art and science of teaching kids and then adults, ठीक है। उसके बाद है आपकी टीचिंग मॉडल्स। देर आर सो मैनी टीचिंग मॉडल्स, बिहेवियरल, सोशल, इंट्रैक्शनल एंड सो मैनी। ऑल्सो रिमेंबर, आप थोड़ा देख के चलें व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक मॉडल एंड व्हाट इज़ ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ टीचिंग। देन आपका आता है लर्निंग वाला पार्ट। ये देख के चलें कि व्हाट इज़ द नुआंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग थिंग। सो लर्निंग में आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग आ जाएगा, एंड देन आपका टाइप्स ऑफ लर्नर्स आएगा। देन आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स, लेटली आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स यूजुअली मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, लाइक योर डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया एंड डिसकैलकुलेशिया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड लर्नर, एडल्ट लर्नर, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस बनता है उसको थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियर करके चलें। Then learning theories. Learning theory again constitute the very important part of this unit because इनसे बहुत क्वेश्चंस आते रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि हर साल ही आते हैं, लेकिन स्टिल आते रहे हैं। तो इफ़ पॉसिबल, बिकॉज अभी आपके पास बहुत टाइम है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कवर दिस पर्टिकुलर यूनिट, तो अभी आप इन सबको कवर अप कर सकते हैं। There are some learning theories: behaviorism, cognitivism, constructivism, social learning theory, then experiential learning, multiple intelligence by Gardner, then Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy is again very important. All the three domains: psychomotor, affective domain, cognitive domain, all the three domains are important. Then again, Skinner, Pavlov, all these propounders of these theories are important along with their experiments। तो आपको उनका आइडिया होना चाहिए कि किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है। देन आपका एक टॉपिक बनता है ह्यूमन मेमोरी का, टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी। देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इन सब का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन पे भी कुछ क्वेश्चंस आपके बने हैं। टीचिंग मेथड्स मैंने आपको बताया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। ऑल्सो इट्स अ वेरी वेरी ईजी पार्ट ऑफ दिस यूनिट, तो आपको इसको कवर करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करने पड़ेंगे। एंड देन इसके बाद आपका एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इसे भी एक बार आप देखें। टीचिंग एड्स अगेन वेरी इजी टॉपिक, लेकिन इन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इनको भी ध्यान से देख के चलिए। देन डिजिटल इनिशिएटिव्स में आपका अगेन वही एमओसी, स्वायम, स्वयं प्रभा, ये आ जाएगा। इसे तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, ये आपके फ्री के मार्क्स हैं अगर आप इसे करके जाते हो, क्योंकि इस पे से हमेशा बहुत क्वेश्चंस बनते आए हैं एंड बनेंगे। देन आपका evaluation and assessment, again a very important part of this unit.
टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, आपका क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस, देन योर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, क्या डिफरेंसेस हैं उनमें, ये देख के चले। इसके बाद वी आर डन विथ टीचिंग एप्टीट्यूड। आगे हम देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ये भी आपकी एक बहुत स्कोरिंग यूनिट है, एंड यहाँ पे आपका जो भी फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। यू नीड टू फोकस मोर एंड मोर कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्योंकि सी नेट जो अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो बहुत एनालिटिकल है, वो आपका रोट मेमोराइजेशन पे बेस्ड नहीं है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड आपका पूरा एक ऐसी यूनिट है जो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही डील करता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, तभी आप इस यूनिट को अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो इसके रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत हॉट टॉपिक्स हैं आपके। लाइक आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, हमेशा एक क्वेश्चन इस पे से बनता ही है। देन आपका प्लेगरिज्म, इस पे आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म पे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स पे आपके कुछ क्वेश्चंस बनते रहते हैं। देन आपका रेफरेंसिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत छोड़ के जाइएगा, बिकॉज इस पे आपके हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। एंड अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से अपीयर हो रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन, ये दो ऐसी यूनिट्स हैं जो आपके पेपर 2 के साथ ओवरलैप कर रही हैं। देयर आर 2 यूनिट्स इन योर पेपर 2 एज वेल। एक आपका रिसर्च मेथडोलॉजी, दूसरा आपका इंग्लिश इन इंडिया। अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन अच्छे से करके जाएंगे तो पेपर 2 की भी आपकी 2 यूनिट्स खुद कवर हो जाएंगी। इसलिए माय एडवाइस वुड बी कि आप सबसे पहले रिसर्च और हायर एजुकेशन अच्छे से कवर करके जाइए, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से अपीयर हो रहे हैं। इसके बाद क्योंकि आपके MLA AP इन पे क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में भी बनते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो ये टॉपिक तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन आपका वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, बी वेरी क्लियर कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है, उन को रिलेशन जो है इनमें वो आपको पता होना चाहिए। देन आपके एथिक्स पे, रिसर्च एथिक्स पे भी आपके कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें आपकी कुछ अप्रोचेस हैं, उन पे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखिए। देन हाइपोथेसिस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है, इसे अच्छे से करके जाइए। योर पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इन पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आपका सैम्पलिंग इज़ ए वेरी इजी टॉपिक, आपको बस एक बार समझने की ज़रूरत है। तो सारे ऑल दी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग करके जाइए, इन पे आपके लेटली काफ़ी क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। इसके अलावा देयर आर सम मोर टॉपिक्स, जैसे सबसे पहले अगेन आपको इनका बेसिक पता होना चाहिए, द मीनिंग, द नेचर ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने आपको बता दिया, हर बार इनसे क्वेश्चंस बन ही रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट आई कैन कवर दिस टॉपिक, आप चाहो तो यू कैन कमेंट डाउन in below in the comment section if you want me to cover this topic. Then उसके बाद आपका स्टेप्स इन रिसर्च, इस पे आपने देखा होगा आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा बनते हैं। यूजुअली आपका जो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, इस पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहे हैं, तो इसको भी आप अच्छे से करके जाइए। देन वेरिएबल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, योर टाइप्स ऑफ वेरिएबल। देन द स्केल्स जिनसे हम वेरिएबल्स मेज़र करते हैं, आपकी 4 स्केल्स हैं, आपको पता होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, देन इंटरवल एंड रेशियो, तो इन्हें भी ढंग से करिए। इसके बाद आपका अगेन द हाइपोथेसिस मैंने आपको बता दिया है। ओके, रिसर्च डिज़ाइन, लेटली आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, इन पे बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इस टॉपिक को एक बार आप अच्छे से करके जाइए। ऑल दी टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, द प्री, ट्रू एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके देयर आर सम सब टाइप्स एज वेल, उनको भी आप करके जाइए। उसके बाद द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग एंड योर रिपोर्ट राइटिंग, ये फॉर्मेट एक बार देख लीजिए, इन पे कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो
ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का के सारे हमने हॉट टॉपिक्स देख लिए हैं. नाउ लेट्स कम टू कम्युनिकेशन. सी, कम्युनिकेशन इज़ ए वेरी ईजी यूनिट. बहुत ईजी है, समझने में आसान है, बहुत ज़्यादा आपको लर्न भी नहीं करना पड़ता है. लेकिन अगेन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. जैसे आपको पता होगा अभी इन जून 2025, नॉट इन इंग्लिश लिटरेचर पर्टिकुलरली, बट देर आर सम अदर कोड्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी मूवीज़ और सीरीज़ से आए हैं. तो वी नेवर नो कि इस बार आपके एग्ज़ाम में वो दोबारा आ जाए. इसलिए एक बार आप अच्छे से देख के जाएँ मूवीज़, जितनी भी प्रोमिनेंट मूवीज़ हैं उनकी रिलीज़ डेट, उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको पता होना चाहिए. इसको आप पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि देर फॉर ऑब्वियस रीज़न अगेन देर आर सो मैनी मूवीज़. आप कितनी कवर कर लोगे, लेकिन स्टिल विल मेक अ वीडियो. आप उसमें से जितनी भी प्रोमिनेंट मूवीज़ हैं उन सबको कवर करके जाइए. देन आपके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. आपके देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स. उन सबको अच्छे से कवर करिए. बहुत ही ईजी टॉपिक है एंड बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. देन आपके मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोमिनेंटली 3 मॉडल्स, लीनियर, इंटरेक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल. उनके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए. इसके बाद द प्रोसेस, आपको ये प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए कम्युनिकेशन का, फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, पूरा प्रोसेस. इसके बाद एक आपका ये नया टॉपिक बनता है हॉट एंड कूल मीडिया. तो ये आप अच्छे से करके जाइए. बहुत इजी टॉपिक है हॉट मीडिया, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपको अपना पार्टिसिपेशन कम करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, आप कोई मूवी देखते हो तो आपको आपके सामने एक विजुअल्स भी होते हैं और आप सुनते भी हो, तो आपको अपनी इमेजिनेशन वहाँ पे कम लगानी पड़ती है. तो इट्स ए हॉट मीडिया. फिर जहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल आपका कूल मीडिया हो जाएगा, जहाँ पे आपका कम इन्फॉर्मेशन मिलती है और हाई पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ता है. जैसे कि आप कोई बुक रीड करते हो, तो आप उसे रीड करते हो तो आपको अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करनी पड़ती है. तो वहाँ आपका हो जाता है कूल मीडिया. अगेन फिर एक आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न व्यू ऑफ कम्युनिकेशन है. इसे भी देख के चलिए थोड़ा सा क्या डिफरेंस है. देन आपका ओके सम अदर टॉपिक्स, जैसे आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके पैरा लैंग्वेज पे. देन आपके देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स. इनको आप अच्छे से देख के चाहिए. इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल. इन सबको अच्छे से कवर कीजिए. बाकी इफ़ यू वांट मी टू कवर देम, just comment below in the comment section. Then आपके कुछ मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ थियोरीज हैं लाइक एजेंडा सेटिंग एंड देर आर सो मैनी, हाइपोडर्मिक निडल, 2-step फ्लो. इनको भी अच्छे से करके जाइए. कल्टिवेशन थ्योरी. बाकी आपकी मीडिया टर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं. फॉर एग्जांपल आपका गेट कीपिंग, आपका येलो जर्नलिज्म, इनको भी थोड़ा देख के चलिए. उसके बाद आपका अगली यूनिट आपकी आती है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. सी, अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छे से कर लेते हैं तो बिलीव मी आपके 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं. 10 क्वेश्चन का मतलब है 20 मार्क्स. 20 मार्क्स, क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर हम मैथमेटिकल रीजनिंग में देखें, एप्टीट्यूड में देखें, और 5 क्वेश्चन हम DI के लेके चलें, इट कॉन्स्टिट्यूट 10 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स ओवरऑल. अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं. मुझे पता है मैथ्स से आप में से बहुत लोग होंगे जिनको बहुत डर लगता है, लेकिन सी, आपका जो नेट में मैथ्स आता है वो बहुत बेसिक लेवल होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं वो. तो इसलिए आपको फोकस करना है अपने बेसिक्स पे. आप बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस लेके उन्हें सॉल्व करने मत बैठिए. आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. सो दीज आर सम टॉपिक्स जो मैथ्स में आपके जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं.
पहले आपको रेशियो प्रपोर्शन, देन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन योर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज, एज प्रॉब्लम्स, एरिया एंड मेंस्ट्रुएशन। अभी इन जून 2025 आपके कुछ क्वेश्चंस एरिया पे भी बने हैं, तो इस बार आप एरिया भी करके जाइए। बाकी सी मैथ्स के लिए डेली आप सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स भी निकाल लेंगे तो आपका मैथ्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, DI एंड योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों मिला के कम से कम 15 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। आपको ये 30 मार्क्स लेके जाने ही हैं एट एनी कॉस्ट। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपका DI नेचुरली स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन अगेन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इन यूनिट्स के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके 5 क्वेश्चन, आपके 10 मार्क्स गारंटीड है अगर आप उसको ढंग से सॉल्व करके आ गए। एंड उसको सॉल्व करने के लिए आपको अगेन क्या चाहिए, यू नीड प्रैक्टिस। तो आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन ओके आपके लॉजिकल रीजनिंग से बनते हैं, ठीक है। सो अगेन लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल यूनिट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा। वो कुछ टॉपिक्स हैं जो पहले से एक्सपेक्टेड है कि इनमें से आता है और वो ही आएंगे, तो आप यहाँ पे भी बहुत आसानी से अपने मार्क्स लेके जा सकते हो। सो यहाँ पे कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो हर साल जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है। नंबर सीरीज से आपका हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, तो अगेन यू रिक्वायर प्रैक्टिस हियर। उसके बाद आपकी फैलेसी इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। यहाँ से आपके हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। कभी कभी आपके 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कभी कभी एक ही बनता है, लेकिन फैलेसी से यूजुअली हमेशा आपके क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल मत छोड़ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। बाकी आपके इंडियन लॉजिक से भी 1 या 2 क्वेश्चंस हमेशा बनते ही हैं, तो उसको भी अच्छे से करके जाइए। इंडियन लॉजिक मैं आपको ऐसे सजेस्ट करूँगी कि जब आपका पूरा रीजनिंग कवर हो जाए आप तब करिए, क्योंकि वो थोड़ा सा डिमांडिंग टॉपिक है। आपको बहुत सारे देयर आर सो मैनी नेम्स जो आपको लर्न करने पड़ते हैं। लेकिन अगेन छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि यही वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपका स्कोर बिल्डअप हो सकता है। ऑलरेडी हम आपकी हर यूनिट से बस वो टॉपिक्स उठा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब आप इन्हें भी अगर छोड़ के जाएंगे तो वो थोड़ा आपके पेपर के लिए सही नहीं होगा, आपके रिज़ल्ट के लिए ठीक नहीं होगा। तो आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। एंड अगेन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आपके पास अभी पूरा 1.5 महीना है, ऑलमोस्ट देयर आर 45 डेज। अज्यूमिंग कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा या फिर कभी भी हो, हम इतना ही एस्टिमेट लेके चलेंगे, तो उस हिसाब से आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर आप हर यूनिट को 3-3 दिन में भी कवर करते हैं तो आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। एक्सक्लूडिंग दीज यूनिट्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, DI एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी 7 यूनिट्स हैं। अगर आप हर यूनिट के लिए 3-3 दिन निकालते हैं तो इन नेक्स्ट 21 डेज़ आप अपने पूरे थ्योरेटिकल पार्ट से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, देन आपका DI एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसको आपको डेली थोड़ा थोड़ा लेके चलना है। डेली अगर आप आधा घंटा भी निकाल लेंगे तो इट्स मोर देन इनफ फॉर दीज यूनिट, क्योंकि यहाँ पे आपकी बस प्रैक्टिस चाहिए। तो अपना यहाँ पे आप डेली आधा घंटा निकाल लीजिए इनकी प्रैक्टिस करने के लिए, और बाकी की जो 7 यूनिट्स हैं उन पे थोड़ा फोकस करिए, जिससे आपका स्कोर अच्छे से बिल्डअप हो। एंड अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे रखिए कि आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, DI एंड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको सारे क्वेश्चन एकदम सही से अटैम्प्ट करने ही हैं, क्योंकि आपको ये 30 नंबर लेके जाने हैं।
इसके बाद बाकी के जो आपका जो बाकी का वेटेज है वो बाकी यूनिट्स का है, उसमें यू हैव टू स्कोर वेल। उसके लिए सबसे पहले आप वो यूनिट्स करिए जिनका जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं वो स्टैटिक रहते हैं, जैसे आपका टीचिंग, देन आपका रिसर्च, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी एंड योर कम्युनिकेशन। फिर आपके जो एनवायरनमेंट और आपका हायर एजुकेशन है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े से अनएक्सपेक्टेड भी आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत वास्ट यूनिट्स हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन भी आ जाता है। तो इसलिए आप पहले वो कवर करिए जो आपका स्टैटिक पार्ट है। देन रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स लाइक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपका मूड एंड फिगर, उसे भी अच्छे से करके जाइए। इसके अलावा आपका स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, देन टाइप्स ऑफ रीजनिंग, आपका टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये टॉपिक्स भी आप करके जाइए। बाकी इतना आप कर लेंगे रीजनिंग में, तो इट्स मोर देन इनफ। इसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। अगेन मैंने आपको बताया बहुत स्कोरिंग यूनिट है, आप बिल्कुल 10 नंबर इसमें से गारंटीड लेके जा सकते हैं अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें। तो दिस यूनिट रिक्वायर्स योर कांस्टेंट प्रैक्टिस, आपका कंसिस्टेंट एफर्ट मांगती है ये यूनिट। अगर आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा आपको। यू जस्ट हैव टू नो कि टेबल्स, ग्राफ्स, इनको आपको कैसे रीड करना है, इनकी भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये यूनिट सबसे स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप इसके 5 के 5 क्वेश्चंस लेके जाएंगे। 10 नंबर गारंटीड है अगर आप इस यूनिट को ढंग से कर लेते हो। तो इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आती है आपकी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स अगेन बहुत स्टैटिक पार्ट हैं जो आपके रिपीटेडली आते हैं, उनको देख के चलिए। और बाकी इसमें आपका थोड़ा सा नंबर सिस्टम भी आ जाता है, तो उसको भी आपको करना पड़ेगा। उसमें अगेन थोड़ा सा आपका मैथ्स आ जाता है एंड उस पर भी बहुत रिपीटेडली आपके क्वेश्चंस आते हैं। अभी जून 2025 में हमने बहुत क्वेश्चंस नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम पे, लेकिन उससे पहले से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए उसको आप अच्छे से कवर कीजिए। बाकी इसके जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो हैं आपके इंटरनेट टर्म्स। देयर आर सम टर्म्स जिनको आपको पता होना चाहिए, उनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। आईसीटी में फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं, तो उनको आप अच्छे से करिए, एक अपनी पूरी लिस्ट बनाइए एंड उन्हें अच्छे से कवर करिए। बाकी आपकी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, आपकी फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन, क्या क्या चेंजेस आए हैं ये आपको पता होने चाहिए। बाकी इस पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी लेटली इन 2025 जून आपके बहुत क्वेश्चंस बने थे जो इसके आई गेस बहुत सारे कोड्स में ऐसे क्वेश्चन बने थे जो आपके जनरेशन के एग्जाम्पल्स पे थे। उसमें आपको वो कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे एंड आपको वो मैच करना होगा कि वो कौन सी जनरेशन का है। तो उनको आप अच्छे से करिए, वो क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लर्न करने में, पर आपको वो लर्न करना पड़ेगा क्योंकि आपको पेपर क्लियर करना है। देन इसके बाद आपका कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको आप अच्छे से करिए। इसके बाद मेलवेयर बहुत ही फेवरेट टॉपिक है नेट का, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन एंड योर स्पाईवेयर। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस एज वेल। इनकी अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पे फोकस करिए। उसके बाद अगेन आपका नंबर सिस्टम, मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम पे बहुत बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ये अगेन एक बहुत फेवरेट टॉपिक है नेट का, तो इसे अच्छे से करिए।
इसके बाद आपका मेमोरी हायरार्की, यहाँ आपका रैम रोम बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसकी भी आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा देयर आर सम अदर टॉपिक्स लाइक आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा डिवाइस आपका इनपुट डिवाइस है, कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपके हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपके मेमोरी टाइप्स एंड देन आपके सॉफ्टवेयर, इन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी आपके बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इनको ध्यान से करिए। आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक योर जावा एंड पाइथन, तो इनको अच्छे से करिए। बाकी आपके नेटवर्क्स पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा पैन लैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैन योर लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, और इनके सबके एग्जाम्पल्स भी आप देख के चलिए। देन आपका वेब इवोल्यूशन, आपका वेब कैसे इवॉल्व हुआ है फ्रॉम वेब 1.0 टू वेब 3.0, तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, कैसे कैसे वो इवॉल्व हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। देन अगेन आपका मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी, सोशल इंजीनियरिंग, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से कवर कीजिए। ये अगेन बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट पार्ट है आईसीटी का, जो नेट आपसे पूछता रहता है, तो ये आप देख के चलिए। उसके बाद अगली यूनिट पे हम आते हैं। अगली यूनिट है आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आई नो आप में से बहुत लोग होंगे जिनको इस यूनिट से डर लगता है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा लेंथी यूनिट्स हैं, बहुत सारे साइंटिफिक नाम हैं, देयर आर सो मैनी गैसेस, पल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो आपको याद करनी पड़ती है। सो फॉर दैट रीज़न ऐसा होता है कि इसको लोग स्किप कर देते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इस यूनिट को छोड़ के चले जाते हैं। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस यूनिट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इस यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें तो करके जाइए ही, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि आपके इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, आपको पता ही होगा हर साल आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका रहता ही है। देन पॉल्यूशन, आपके पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स पे लेटली बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो पॉल्यूटेंट्स अच्छे से देख के चलिए। देन आपके एसडीजी और एमडीजी, ये आपका नेट का फेवरेट टॉपिक है। अगेन इतने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, इसको अगर आप करके जाएंगे तो अगेन ये आपके फ्री के मार्क्स हैं, इसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। आपको पता होने चाहिए, आपको टिप्स पे पता होने चाहिए कि आपके कौन सा आपका फर्स्ट यूएन गोल क्या है, आपका सेकंड क्या है, ठीक है, तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। हम इसको कवर कर लेंगे अगली वीडियो में। देन इसके अलावा देयर आर सम मोर टॉपिक्स लाइक आपका अगेन आपका ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, सस्टेनेबिलिटी, देन आपका इकोसिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, आपका देन नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों आप देख के चलिए। इसके बाद आपका ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एसडीजी एमडीजी मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे भी आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, इसको भी ध्यान से देख के चलिए, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो खासकर जो प्रोटोकॉल्स है, कन्वेंशंस हैं, जो ये मूवमेंट्स हैं, यहीं से आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो आता है। तो जो भी आपके कन्वेंशंस करंट अफेयर्स में चल रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान से देख के चलिए। बाकी आफ्टर दिस यूनिट हमारी आती है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन, इससे भी आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, क्योंकि अगेन बहुत लेंदी यूनिट है एंड देयर आर सो मैनी कमीशंस, सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ टू लर्न इसको। लेकिन ये यूनिट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका इंग्लिश इन इंडिया भी यहाँ कवर होता है। और पिछले एग्ज़ाम में जून 2025 आपको पता ही होगा इंग्लिश इन इंडिया से भी बहुत क्वेश्चंस बने हैं। तो इस यूनिट को आप थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
इसमें आपके कुछ रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जैसे आपके इंस्टीट्यूशंस, जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आपका यूजीसी, नैक, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके। देन आपका एंशिएंट एजुकेशन से भी आपकी यूजुअली एक क्वेश्चन तो रहता ही है। आपकी यूनिवर्सिटीज़, जो आपकी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक योर तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इन पे आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो एंशिएंट एजुकेशन, बाकी इसमें आप बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वाला पार्ट भी देख के चलिए। देन आते हैं आपके कमीशंस, आपके प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और इनको आप स्किप नहीं कर सकते। ये दिस टॉपिक इज़ द हार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, तो इसे तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। इसके अलावा 5 ईयर प्लान एंड योर NEP 2020, अगैन ये आपका नेट का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेवरेट टॉपिक है, जो आपसे NTA पूछता रहता है। इसके बाद देर आर सम मोर टॉपिक्स जो आप कवर कर सकते हो, लाइक योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एजुकेशन आर्टिकल्स। इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज़, कौन सी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आपकी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद आपका some topics like governance and funding mechanism, autonomy and accountability in higher education, again it's a very important topic। बाकी आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये आपके हर यूनिट में ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख के चलिए। इन पे अभी रिसेंटली बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो हायर एजुकेशन में बस आप इतना करके चलिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है और हायर एजुकेशन को आप बहुत डिटेल में लेके रिस्क नहीं ले सकते हो। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप पहले उसे कवर कर लीजिए। देन इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट रहती है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे पता है आप लोगों को सबसे ईजी लगता है, और अगर आप लिटरेचर वाले हैं तो आपको बहुत ही ईजी लगता है। लेकिन अगेन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, और आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है हमारे लिए, और वो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जब आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका टाइम भी साथ साथ चल रहा है। आपके अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब जो आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, एनालिटिकल हो रहा है, आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी पड़ रही है। इसलिए आपको थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना है, एंड फॉर दैट रीज़न यू नीड प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा मॉक्स, जितने ज़्यादा PYQs प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी पार्ट है, एंड यहाँ पे भी आप आप पूरे 10 मार्क्स लेके जा सकते हो, और आपको लेके जाने हैं। आपको अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बना के चलनी ही पड़ेगी कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स एंड देन योर DI, इनके सारे क्वेश्चंस एकदम सही अटैम्प्ट करने हैं। आपने अगर ये कर लिए तो आधा आप पेपर 1 में जीत चुके हो। उसके बाद ओके, सो वी आर डन विद ऑल दीज यूनिट्स। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो यूनिट्स जिनका बहुत स्टैटिक पार्ट है उन्हें कवर करना है। ट्राई करिए कि ये सारे टॉपिक्स आप कवर करके चलें, एंड ये कवर हो भी जाएंगे, क्योंकि अगेन 1.5 मंथ बहुत होते हैं इन सबको कवर करने के लिए। अगर आप हर एक यूनिट को 3-3 दिन भी देंगे तो आप इन सबको 20 to 21 डेज में कवर कर लेंगे। लेकिन अगेन आपको मैथ्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और DI, इनकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है। सो इन सब यूनिट्स में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, एक बहुत ही डोएबल डेप्थ में मैंने आपको बता दिया है। I have shared the strategy. Now the ball is in your court. So hit the ground running, burn the midnight oils, and keep your chin up, because you can crack this exam, and you will crack this exam. You just have to be confident and consistent. Just remember, consistency
is something which is most required. Consistency compounds. So just stay consistent, work hard, and you will crack this exam, you will ace this exam. बस इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए. जब आपके ये टॉपिक्स कवर हो जाएं तब ही आप थोड़ा सा डेप्थ में जाइए. सबसे पहले यू नीड टू कवर दीज टॉपिक्स ओनली. ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. हमको स्मार्ट स्टडी करनी है. स्मार्ट स्टडी करनी है इसलिए हमको वो टॉपिक्स करने हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं. हमें अपने एफर्ट्स वहाँ डालने हैं जो एग्ज़ाम में आता है. सो just focus on your preparation and don't compare your journey with others. सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, आपकी अपनी जर्नी है. आप आराम से कर लेंगे, बस स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट, सब हो जाएगा. बाकी बस याद रखिए, पेपर 1 इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड अगेन आपका रिवाइजिंग. ठीक है, आपका रिविजन ज़्यादा होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, सब कुछ खुद हो जाएगा. सो दैट्स द क्रक्स ऑफ इट. लेट्स कॉल इट अ डे. इसके बाद हम मिलते हैं. दैट्स द क्रक्स ऑफ इट एंड लेट्स कॉल इट अ डे. इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियोस में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ. Baki, if you want me to cover any of your favorite topic, just comment it down in the comment section. इसके अलावा just do one thing, keep revising and बहुत सारे PYQs और mock test दोनों को साथ साथ करते चलिए. Okay, so just bite the bullet and face this exam with all your energy and hard work. You will ace this exam and you will crack this exam in this one go only. So tab tak keep working hard. All the very best for your NET exam and let's call it a day. So this is Chavi Prada signing off. All the best for your NET exam. Thank you.